तुम्ही नीती मॅडम तुमच्याकडे अजून पुस्तक आलं नाही ना आपलं हे गाथेचं. यू आर नॉट गॉट द बुक येट, राईट? No, no. Okay, I am coming to Pune tomorrow evening. So I'll give you the book maybe day after tomorrow. And Vijaya madam तुम्हाला हे पुस्तक दाखवतो. First, let me show you the book. You might have seen the advertisement. You are seeing the text or reverse form में. It is divine verses. And the speciality of the book is that it contains translations in English of 52 very popular Abhanga of Saint Tukaram. Why we have chosen 52 very popular Abhanga is because we want to give introduction to the world of Tukaram Maharaj's literature. So far, the world has been deprived of learning from this great Indian saint. And as you know, every Mm-hmm. saint has a lot of things to teach the whole world. If people go by saints' advice, there will be peace and prosperity and love all over on the earth. And Tukaram Maharaj's literature was restricted to Marathi language because of no translation. So I thought Yes, in yes. 2016 and started translating in English. Until now, I have translated 950 Abhanga into English. And it is Okay. still only 20% of what I have to do total because Tukaram Maharaj has written 4,500 Abhanga. That is a huge Bapre. ocean, and every Abhanga is absolutely filled with love, joy, bliss, devotion for God, and advice for a good life. How to live a good life, that is what Tukaram Maharaj advises. And another speciality of Tukaram Maharaj is that he doesn't accept culprits, neech admi, kapti admi. He doesn't accept them and he gives them a very big scolding. He uses a language which, if that person hears, he will start getting scared, and those people will have to change their methods of living. They will realize that what they are doing is totally wrong. I So, have in Gatha, there are so many examples, at least 500 Abhangas, more than 500 Abhangas are such that they give a stern warning. He gives a stern warning to the culprits कि हे नीच आदमी, तू तेरा बात करने तेरे बर्ताव का तरीका बदली कर, तू बुद्धि बदली नहीं करेगा तो तू कौन सी गति से जा रहा है, तेरा वो आगे क्या होने वाला है, ये मैं बताता हूँ। और ऐसा कह के तुकाराम महाराज ने उसको बताया है कि तेरे को यम तेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, यम के दूत तेरे से क्या व्यवहार करेंगे, तेरी कैसी ये हो जाएगी। तो ये सुनकर वो आदमी को इतना डर तो जरूर लगेगा कि भाई हमको बदली होना, कुछ तो चेंज करना चाहिए। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल of Tukaram Maharaj is. Now, we want to publish all the 950 Avanga in the form of three books because each book will be mm, 600 pages. It will contain 300 Avanga translations. So ये तीन वॉल्यूम में से अभी पहला वॉल्यूम का प्रिंटिंग कंपोजिंग चालू हो गया है। विपुन कुमार जी नमस्ते। अभी आपको हम विपुन कुमार से इंट्रोडक्शन कराएंगे। आपका म्यूट अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, वो लेफ्ट साइड में जो बटन है नीचे उसको दबा के अनम्यूट हो जाइए। सो देन वी विल बी एबल टू हियर यू। नहीं, अभी भी हुआ नहीं है। यू हैव टू प्रेस दैट बटन, वो एक लाल स्पीकर जैसी बटन है, उसको टच करिए। लेफ्ट साइड में नीचे रहेगी, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बटन है उसको दबाइए। नाही, अभी भी हुआ नाही। विपनला अनम्यूट दाखव ना कसं करायचं, त्याला कळत नाहीये। हाँ नहीं हुआ विपना, अभी भी नहीं हुआ है अनम्यूट। तुम इधर इधर आ जाओ इधर। अच्छा, यू आर ऑन युअर लॅपटॉप, हेमंत विल शो यू। हेमंत इज कमिंग देअर, ही विल शो यू। तिकडच्या रूम मध्ये त्याला अनम्यूट कसं करायचं, हा लॅपटॉप मध्ये ती रूम बेडरूम क्रॉस करून तिकडे बाल्कनीत जा, तिथे तिथे त्याला दाखवत आहे। तर
अच्छा विपिन आज नाही पण इथेच बसलेले ते. हा विपिन, यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ, इधर आ जा, इधर आई विल शो यू। नहीं तेरे लैपटॉप में बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। आई विल शो यू द बटन, एकदम लेफ्ट साइड में बटन है नीचे। Okay, so I think now what we will do, I will explain. So because we want to publish these 300 Abhanga volumes, what we discussed, Mandar Jogrekar of Book Ganga, he is an international publisher and they have published many books. अपना जो आईआईटी का बंदा है गुडबोले, अच्युत गुडबोले की बहुत सारी किताबें बुक गंगा ने पब्लिश की है। And so Book Ganga is a very famous publisher. And what their people, Mandar Jogrekar, he the owner, recommended that we should first give introduction to the world of Tukharam Maharaj in a small way. So he suggested, let us have a book of about 50 translations, and after that we will print the 300 Abhanga volumes. So वो तो 300 वाले वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, तीन वॉल्यूम पर प्रिंट होने के लिए अभी तैयार है। उसमें से पहला वॉल्यूम प्रिंट हो रहा है, जो चालू हो गया काम। This book, which we published on 11th January, contains 52 popular Abhanga translations, and the idea is, I'll show you how this has been done. I'll show you on share screen, that will be easier. तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए जाऊंगा। एक मिनट, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। एक मिनट। Okay, so now I will go for sharing, and you will see on your screen the copy of the book. Okay, this is good. Are you able to see, Dr. Neeti, तुम्हाला दिसतंय? Yes, 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 Okay. I can see. The आवाज zero करो, आवाज zero. So what is now the screen Screen showing you is the showing book, you the book. and And the the gimmick what we gimmick have what done, we we have have done, we given have some given nice some gimmick. nice gimmick. We have We have given given you you the the Abhanga Abhanga in Marathi, Marathi, that is that is Devanagari Devanagari script, script. and And after after that, that, how to how to pronounce that pronounce that Abhanga in Abhanga in Roman script, Roman script. because Because people the don't people know who don't know Devanagari. Devanagari, वॉल्यूम volume आवाज आवाज रुक रुक रहा है, Echo येतोय. इको आ रहा एक है। आप लोग आप ऐसा लोग करो, ऐसा करो, इधर ही बैठो इधर ही पीछे बैठो वाली पीछे कुर्सी वाली पे। कुर्सी। फर्स्ट आई विल First, शो I यू will माय show you फ्रेंड्स, my सो friends. देयर इज नो There is no सस्पेंस। suspense. ये लोग You हियर, look here, मिस्टर Mr. जोगळेकर Jogrekar. आणि आणि मिस्टर Mr. विपिन कुमार Vipul शर्मा। Kumar Sharma. आई एम इन द I am in हाउस the ऑफ house मिस्टर of विपिन Mr. कुमार Vipul शर्मा Kumar Sharma in Lucknow. Lucknow. Vipin Kumar Vipul was Kumar my was my classmate, classmate, schoolmate सब, schoolmate, sir. and we used to We be always always together together खाने के खाने लिए, के पिक्चर के लिए, लिए पिक्चर और के पराठे और खाने के खाने लिए। के लिए। And he And he worked with the worked with the UP UP Police Police Department, Department, IPS, IPS, and he and retired he as a retired very as a good very boss of boss UP of UP State. State. And And after that, after that, now now he he is is actively pursuing Jyotish Phala Shastra. Jyotish Shastra, not only Phala Jyotish, everything about Jyotish. He is doing a 2 year course, degree course from Jawaharlal, no, Indira Gandhi, IGNOU. And IGNOU, in 2 years, he will become a Jyotishi. This is fantastic, that interest. And his wife, she will also come probably in a few minutes, and she has joined a Bhagavad Gita class course from IGNOU University, and she's going to become Master of Arts, MA in Bhagavad Gita.
सो दिस इज समथिंग फैंटास्टिक कि दुनिया में क्या क्या है और लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देख के हम तो चकाचौंध हो जाते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर सब्जेक्ट। व्हाट वी हैव डन, we have given you the Abhanga text, then we have given you how to pronounce it in the Roman text, Roman script. After that, the translation is on the right side of the page. On the left side, you will see the Abhanga, and on the right side, you will see its translation. Let me show you the first example. Ah, we had done five Abhanga so far in three events. Today is the fourth event, and I'm very happy to have all of you. See, this is the way the Abhanga is written. This is the way in Roman script how you can pronounce it. So even if you are a German or a Japanese and you don't know how to read the Devanagari, you will still be able to read Sundarate Dhana Ube Vitevari Kara Katevari Tevari. So like that. And the translation is on the right side of the page. If you have the book in your hand, let me show you. If you can look at my picture, this is how the things are. I take one Abhanga. धन्य आजी दिन झाले संतांचे दर्शन. So left side you have the Abhanga, Roman script. On the right side you have the meaning, the translation. And look at this. This is a QR code. And this is very unique. If you scan this QR code with your mobile, you will be able to hear that Abhanga in the melodious voice of Lata Mangeshkar. Sundarati Dhyana is by Lata. So you'll be able to hear Lata's voice. So with this, we will be able to give to the whole world a taste of what is Shravan Bhakti. Because Bhakti has 9 steps. There are no Vidha Bhakti. Shravan Bhakti is one very important step. And even with Shravan, people can get into a state which is almost like a Samadhi. आणि म्हणूनच कृष्णाची बासरी ऐकू आली की गायी आणि हरणं देखील स्तब्ध व्हायचे आणि ऐकायचे. वी ऑल नो दॅट स्टोरी that cows and deer, they used to listen very nicely, very intently Basri Vadan of Lord Sri Krishna. So this is how the book is, and our program, this Meet the Author event or book reading event. Why I am doing it? The reason is I would like the whole world to know that yes, now you can access the wisdom of the Karam Maharaj, the teachings of the Karam Maharaj in the English language, and you first have the book of 52 translations, but after this you are going to have 900 Abhangas in 3 volumes, and because the news has to spread, unless people become aware, they will not buy the book. And I, my purpose, so I am spending money from my own pocket. I have decided I will not keep 1 rupee from sale of my whatever earning I make from this book, because it is not really desirable as per our religion to take the money which you get from doing anything which is related to God's name. So I have decided. So I'm spending money from my pocket, and in fact, I have a brilliant idea. I don't know how far it will, when it will materialize, but from our family and friends, I would like to donate 1,000 copies of this book to Dehu Samsthan, to the 10th generation descendants of Tukaram Maharaj, Manik Maharaj More, and Purushottam Maharaj More. And I want to request them to give one copy to every foreigner who comes to visit the Dehu temple. Because there are many foreigners who come to Pune for IT work, IT meetings, and when they go for sightseeing, the first thing they think about coming to is Alandi and Dehu. So when they come to Dehu and when they hear the stories about the Tukaram Maharaj, they get very highly impressed. Somehow we have not been able to tell the world about the life and his chamatkar and his work, Tukaram Maharaj's work. So many people, when they come to Dehu, they hear for the first time and they get highly impressed. And I have seen the big shoal of fish which was continuously floating in the river just outside the temple. It shows the power of the yogi. Tukaram Maharaj was a great yogi. The fish
They don't go anywhere else, but the fish is always swimming in huge swarm just outside Dehu temple. 25, 30 years, 50 years back, that was a very big one, and you could see the water bouncing. But now also, as Manik Maharaj told me, even now there are times when you have a huge colony of fish there, and they're all attracted because of the power of the saint. And people don't know this. And when they come to know that he went with his body to Vaikuntha in the Garud Vahan of Vishnu, then they start asking, Sir, do you have anything to read in English? And so far, there was nothing. And now I'm very happy. I'll be very happy to present this 1000 books to Dehu, because I will request them to give one book to every foreigner, and he should read and he should understand how Tukaram Maharaj has guided people who आर संसारी आदमी. हम लोग सब संसारी लोग हैं. हमको संन्यास लेके जंगल में जाना नहीं है भगवान को ढूंढने के लिए. सभी संतों ने कहा है घर में बैठो और घर में बैठ के हरि का नाम लो. आपके घर में हरि खुद चल के आएंगे, आपको दर्शन देंगे. आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई उपास तपास तपश्चर्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. प्यार से हरि का नाम लो. यही तुकाराम महाराज ने बताया है, यही ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है, कबीर, नानक, मीराबाई, साउथ इंडियन सेंट्स, रामदास स्वामी, ज्ञानेश्वर महाराज, everybody. And so my mission, I have made it in my life. My mission for the rest of my life is I will tell people कि भाई आप लोग अभंग पढ़ो, अभंग सुनो, अभंग गाओ, अभंग से नाचो, जिंदगी मजे में बिताओ. Life is good when you recite Abhanga, when you sing Abhanga, when you mug them by heart. You should learn them by heart. I can tell you one Abhanga in which God's name is repeated. Vipan Kumar ji, Suman ji. एक मराठी तुकाराम महाराज का अभंग है जिसमें भगवान का नाम कम से कम 40-45 बार एक अभंग में है. तो मतलब है आप एक अभंग यदि उसका रट्टा लगाओ, उसको मगअप करो और वो एक बार गाओ, तो भगवान को आपने 45 नाम से पुकार लिया. भगवान भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, और हमको भी उसमें आनंद मिलता है. और वो अभंग इतना अच्छा गाया है एक बुजुर्ग गायक ने. तो वो अभंग मराठी लोगों में बहुत बहुत सारे लोगों को पता है. वो अभंग का वर्डिंग है, श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायण. पहली लाइन में 4 नाम हो गए. हाँ. देन जग व्यापका 5वां, जनार्दना आनंद घना अविनाशा, सकळ देवा आदि देवा कृपाळुवा जी केशवा, महानंदा महानुभावा सदाशिवा सहज रूपा, पद्मनाभा नारायणा. सो ऐसे एक एक नाम लेते जाते हैं. चक्रधरा, विश्वंभरा, गरुडाध्वजा करुणाकरा, सहस्त्रपादा सहस्त्रकरा, क्षीर सागरा शेषशयना. बस भगवान के नाम ही लिए जा रहे तुकाराम महाराज. बाद में कहते हैं कमल नयना कमलापति, कामिनी मोहना मदन मूर्ति, भवतारका धरी त्याक्षिति, वामन मूर्ति त्रिविक्रमा, पद्मनाभा नारायण. उसके आगे अगाये सगुणा निर्गुणा, जगत जनित्या जग जीवना, वसुदेव देवकी नंदना, बाळ रांगणा बाळ कृष्ण. तो ये और बाद में लास्ट स्टैंजा में लिखते हैं, तुका आला लोटांगणी. मैं आपके चरण पे नमस्कार करता हूँ. भगवान को कहते हैं तुका आला लोटांगणी, मुझे ठाव द्यावाजी चरणी. मुझे आपके चरण में स्थान दीजिए. तो मुझे ठाव द्यावाजी चरणी, हेची करीतसे विनवणी, भवबंधनी सोडवावे. अभी मैं आपको इतना ही विनती करूंगा कि ये भवबंधन जो है इसमें से मुझे आप फ्री कर दीजिए. दिस इज वन अभंग. इफ यू बाय हार्ट दिस अभंग, 45 नामस्मरण हो गए हमारे, और आनंद भी इतना प्राप्त होता है. आप वो गाना सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद होगा. अभंग इज दोहा. कबीर जब, हाउ मेनी अभंग तुकाराम महाराज. हाँ. The abhang can have anything from even 3 lines or 4 lines to 100 lines. But generally, Marathi is equivalent in Hindi is abhang. दोहा. अभंग इज दोहा. तभी जो आपने बोला वो कितनी लाइन? मीराबाई की रचना है, उसको भी क्या कहते हैं हम? मीराबाई के दोहे कहते हैं. दोहे. कबीर के दोहे. नानक के क्या होते हैं? चरण होते हैं गुरु नानक के. उसमें या वो श्लोक रहते हैं नहीं. लेकिन दोहा इज अभंग इन मराठी.
तो ये जो अभंग है, टिपिकल तुकाराम महाराज अभंग 4 से 6 लाइन का होता है, कभी कभी 8 लाइन का होता है। मोस्ट ऑफ देम आर 4 और 6, सम ऑफ देम आर 3, बट देर आर सम अभंग इन विच ही हैज डिस्क्राइब्ड वो चेंडू फड़ी श्री कृष्ण का गोपों के साथ वृंदावन में वो क्रिकेट खेलते थे, बॉल बैट चलता था, और वो बॉल गिर गया यमुना में तो वो कालिया मर्दन हो गया। तो उसका वर्णन जो तुकाराम महाराज ने किया है उसको चेंडू फड़ी से अभंग लिखा है। तो चेंडू फड़ी से अभंग में बहुत बहुत स्टैंजास है, एंड देर आर सम 2 अभंग इन गाथा जिसके 100 चरण है, 100 लाइन्स, बट दैट इज बाय एक्सेप्शन। एंड अभंग की एक खासियत, अभंग मतलब क्या है कि एवरीथिंग विच इज कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी, द स्पेशलिटी ऑफ दैट इज when you go on repeating it again and again, your mind becomes engrossed in it. And after repetitions, you start deriving the benefit of getting the spiritual connection, the spiritual benefit. You start loving it, you start liking it, the energy field is generated around you, and you start really deriving the benefit. इसलिए लोग ज्ञानेश्वरी पठन करते हैं तो वो हर 2-4 महीने के बाद एक बार ज्ञानेश्वरी पठन करेंगे, कोई गुरु चरित्र का पठन करेंगे तो वो बार बार करेंगे, गाथा लोग बार बार पढ़ेंगे, गीता एवरीबडी ऑल स्वामीज टेल यू कि दिन में कम से कम एक बार गीता का अध्याय पढ़ो, उसके बाद सो जाओ या खाना खाओ, खाना खाने के पहले एक अध्याय गीता का करना है। व्हाई दिस रिपीटिशन, व्हाई इज द इंसिस्टेंस ऑन रिपीटिशन, इज रिपीटिशन से हमको वो बाय हार्ट हो जाता है। एक बार बाय हार्ट हो गई चीज तो उसके बाद उसको हमको दिमाग को तकलीफ नहीं होती है बोलने में, सो इट कम्स ऑटोमेटिकली, इट कम्स इंस्पिरेशनली। And when things start coming inspirationally, your energy level starts going up, your mind starts becoming clutter free, your mind starts enjoying that, and you become an addict. जो गीता हर रोज पढ़ेंगे वो गीता के एडिक्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं गीता नहीं पढ़ूंगा तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसे ही हो जाता है लोगों का। सो दिस इज द मैजिक इन स्पिरिचुअलिटी। सो पीपल हु आर नॉट एक्चुअली exposed to this, they don't consider it very important. But once you get into it, you start understanding the fun in that. So we will come now to the description of the program, and we will start the program. How we are going to do? Sorry, anybody wants to say something, please just बोलो, और मैं आपको एक बताऊंगा, आपका स्पीकर अनम्यूट करके आपको बात कर सकेंगे। सदाशिव पाटिल इज ऑनलाइन, और ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 40 मिनट के बाद, तो भाई यही लिंक यूज करके फिर से नई मीटिंग चालू करूंगा, तो आप सब फिर से वही लिंक यूज करके मीटिंग में आ जाना। तो वी विल कंटिन्यू। सो इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक फॉर अ मिनट, वी विल स्पीक, एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग विद अभंग 6, क्योंकि पहले 3 इवेंट में हमारे 5 अभंग गा के हो गए हैं, तो अभंग छठा, हेमंत जी कौन सा है अभंग छठा, तो उससे हम लोग चालू करेंगे। सदाशिव हेलो बोलो सबको प्लीज, आपका Sir, unmute करके excuse हेलो। me. हेलो हाय, सदाशिव पाटिल इज हेलो हेलो संजीवन विद्यालय पाचगणी, सदाशिव, डॉक्टर नीति आणि विपिन कुमार शर्मा इज माय आईआईटी फ्रेंड, आई एम इन हिज हाउस। विपिन कुमार के हाउस में मैं, हेमंत जोगलेकर हमारा पुणे का आईआईटी खड़गपुर का फ्रेंड, हम लोग लखनऊ में आए हैं। और आ, और कौन कौन है लाइन पे? कन्या शास्त्र है। ओके, विजयाताई तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर बोला, नाहीतर आता आपण सरळ पुढे जाऊया। वी विल स्टार्ट रीडिंग। ओके, हाँ, ये हमने लास्ट टाइम किया था, पराविया नारी माऊली समान। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्या सासुरासी जाए। So Kanya Sasurasi Jaye is starting from page number 50. And you don't have to worry because you are going to see it on the screen. Vipin Kumar ji, आपको screen पे दिख रहा है ना सबको? सदाशिव. So let us first, the program is like this. For half an hour, I read Abhanga, but I think we have already spent a lot of time. So I will read 1 or 2 Abhanga. After that, we will have talk, question, answer, discussion, and then we will close our meeting. And when the meeting stops, we will continue for the next, we will restart the meeting with the same link. So this is in Gatha of
गंगू काका शिरवळकर उनकी गाथाओं की पोथी में ये अभंग नंबर 143 है, कन्या सासुरासी जाए. दिस इज अ वेरी स्वीट एंड फेमस अभंग in which Saint Tukaram's intense longing for God is evident. So let us see the wording. कन्या सासुरासी जाए मागे परतुनी पाहे. Here there is a picture. My friend, 79-year-old friend, Mr. बोकिल, श्रीराम बोकिल, उनको नाम भी बड़ा अच्छा पाया है. श्रीराम जी का नाम है, बोकिल साहब ने ये चित्र बनाया है. इससे पूरा पिक्चर आपको समझ में आएगा. कन्या सासुरासी जाए मागे परतुनी पाहे, तैसे झाले माझ्या जीवा किंवा भेटशी केशवा केशवा. चुकलिया माये बाळ हुरुहुरु पाहे, जीवना वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी. सिंपल, सिर्फ 4 लाइन, और वो 4 लाइन भी 4 4 शब्द की एक लाइन है. तो टोटल लाइन गिनो, टोटल शब्द गिनो तो शायद 16 18 शब्द होंगे. लेकिन इतने शब्दों में तुकाराम महाराज ने पूरी दुनिया का सुख और दुख बता दिया है. जो लड़की शादी करके जाती है तो उसको मन में ऐसे लगता है कि कभी मैं फिर से वापस मेरे घर में आऊं. जब घर से बाहर भी निकलती है शादी के बाद तो बार बार पीछे देखती है, उधर उसके पिताजी माताजी उसको आशीर्वाद देते हैं, रोते हैं, लड़की भी रोती है और दिखती है कभी फिर मैं वापस आऊंगी. तुकाराम महाराज कहते हैं मेरा भी वही हो रहा है. So I will look at the translation now. This is on the right side of the page when you have the book hard copy. Those who don't have the hard copy, I will come to the next page. So the first line, Kanya Sasurasi Jaye Bage Partuni Pahe. The translation of this is like this. There is a tradition that after marriage, a girl leaves her mother's house and goes to her in-laws' house. When she starts leaving her house, she keeps looking back again and again. She is feeling the pain of separation. Second line is, तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटशी केशवा. God, Lord Keshav, I am also feeling like that. When will you meet me, Lord? कभी आप मिलेंगे. तीसरी लाइन, चुकलिया माये बाळ हुरु हुरु पाहे. Another beautiful example, and the word huru huru is a beauty of Marathi language, unsurpassed beauty. The meaning is when a mother goes out of sight of a child, वो दृष्टि आड़ भी होती है 1 मिनट के लिए तो लड़का बच्चा रोना चालू करता है. शायद वो सिर्फ किचन में गैस बंद करने गई हो, लेकिन बच्चे को तो पता नहीं चलता है कि 10 सेकंड में वापस आने वाली है, वो तो रोना चालू कर देता है. सो व्हेन अ मदर गोज आउट ऑफ साइट ऑफ अ चाइल्ड, ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, वेरी एंक्शियस टू मीट हर. एंड तुकाराम महाराज सेज, जीवना वेगळी मासोळी तैसा तुका तळमळी. So this is the third example, and he is saying a fish that is taken out of water starts wriggling. Tuka is also wriggling like that. When will you meet me, Lord? Isn't it a very beautiful abhanga? In just about 16-17 words, Tukaram Maharaj has given 3 examples, and he has convinced Lord Panduranga that I cannot live without you. मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं वो मछली हूँ, और मैं वो लड़की हूँ जो घर में से बाहर निकले, उसको फिर घर में वापस आना है, मम्मी डैडी के घर. तो वैसे मुझे आपको घर में वापस आना है. कभी मिलोगे, कभी वापस बुलाओगे. ऐसा ये अभंग तुकाराम महाराज का है. तो ये सेवा मैं उनके चरण में ही सुपुर्द करता हूँ. और आपकी इजाजत हो तो और एक अभंग पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे. ठीक है सदाशिव, विजया, विपन, इज इट ओके? हेमंत, Okay, so let us go to it's the okay. next abhanga. So Jeka Ranjale Ganjale, Abhanga 204 in the Gatha of Gangu Kaka Shirvalkar. In this famous Abhanga, Saint Tukaram is giving 3 messages. One is you should help those who have been harassed to the limit by challenges. कठिनाई में जो हो उसको मदद करो. Second, consider that the person who takes care of weak and aggrieved is truly an image of God
जो दुखियों की मदद करता है वो भगवान की मूर्ति ही है, यही समझ लेना, ऐसा तुकाराम महाराज कह रहे हैं। और तीसरा, द मिशन ऑफ अ गॉड रियलाइज्ड पर्सन डजंट एंड विद बिकमिंग वन विद गॉड। जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वो तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वो कहेगा अभी तो मेरे को तो भगवान मिल गया, अभी मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी बैठ के सिर्फ हरि हरि करूंगा। क्योंकि हरि हरि करके ही भगवान मिलते हैं, तो वो करने के बाद, भगवान मिलने के बाद, वो आदमी हरि हरि करना तो चालू रखता ही है। उसके सिवा वो लोगों को मदद करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। So the mission of a God-realized person doesn't end with becoming one with God. Thereafter, he continues to help the destitute and the aggrieved. He doesn't differentiate between his own children and a servant. उसके मन में इक्वालिटी इतनी छा जाती है कि घर का नौकर हो या अपना खुद का बच्चा हो, दोनों को इक्वल प्यार देता है। ये जो अभंग है, इसके ऊपर भीमसेन जी बड़ा बढ़िया गाना गाया है, जेका रंजले गांजले। मराठी दुनिया में सभी लोग ये गाना पहचानते हैं भीमसेन का। और भीमसेन की जब संतवाणी के प्रोग्राम्स होते थे, तो ये गाना भीमसेन हमेशा जरूर गाते थे। तो आपको भी एक मैं सुझाव दूंगा कि आप इसके बाद इसका फोटो ले लीजिए बॉस, आप सब लोग, विजया ताई और सदाशिव के पास तो किताब है, और भी जो कोई सुन रहे होंगे, ये क्यूआर कोड है, इसका आपके मोबाइल से फोटो ले लें और इसको मोबाइल से स्कैन करो, या चाहिए तो अभी स्कैन करो, आपके मोबाइल पे ये आया है, बट यू विल नीड अनदर मोबाइल टू स्कैन इट। व्हेन यू स्कैन दिस यू विल गेट भीमसेन सॉन्ग। पहले मैं आपको एक बार उसका डेमो ही दिखा देता हूँ। ये मेरा मोबाइल मैंने लिया, ये मोबाइल पे गूगल स्कैनर है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाइट स्ट्रिप है, दिस इज द गूगल स्कैनर स्ट्रिप। इसके राइट साइड में वो स्कैनर का लेंस खोलने का बटन है, उसको दबाया तो अभी गूगल लेंस खुल जाएगा। और इससे मैं ये क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर यूट्यूब नाम के अक्षर आते हैं। यूट्यूब का अक्षर आ गया तो शटर बटन को दबाना है। आई हैव डन दैट एंड नाउ यू विल सी दैट दिस अभंग विल स्टार्ट प्लेइंग। ये शायद आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो कुछ ब्लॉक आता है सिस्टम में। इफ आई हैव टू प्ले दिस आई हैव टू प्ले फ्रॉम माय लैपटॉप, बट इट डजंट मैटर, वी विल नॉट वेट फॉर दैट। सो लेट अस ट्रांसलेट दिस अभंग। I will first read the Abhanga in Marathi and then we will take one by one the line translations. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, मृदू सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनांचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदयी। पेज नंबर 52 and next lines are on the next page. I will read that also. दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ती। तो इसका ट्रांसलेशन वन बाय वन वी विल सी द लाइन्स। फर्स्ट लाइन, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। On the right side of the page you will see the man who befriends the distressed and aggrieved persons. In the second line he says तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. So recognize this man as a sage, know that he is a true image of God. Then we'll come to the third चरण। इसको चरण कहते हैं, ये एक एक लाइन रहती है, इसको मराठी में चरण कहते हैं। शायद हिंदी में भी चरण कहते हैं, तुलसीदास के दोहे, मीराजी बाई के दोहे। तो तीसरा चरण है, मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त। The heart of such gentlemen is like cream,
विच इज सॉफ्ट इनसाइड एंड आउटसाइड। उसको कहीं भी कठिनाई नहीं रहेगी, अंदर बाहर पूरा मुलायम, तो है मृदु, है मृदु सबाह्य, नवनीत जैसे मृदु है इनके हृदय। और त्यासी अपंगिता नाही, त्यासी धरी जो हृदयी। He holds close to his heart any person who has no one to take care of him। जो डेस्टिट्यूट आदमी है, जिसको कोई भी दुनिया में सहारा नहीं है, उसको संत लोग सहारा देते हैं। ये तो हमने बहुत जगह पे देखा है, सुना है। उसके बाद का है पांचवा चरण, दया करणे जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी। इसका ट्रांसलेशन है, ही गिव्स इक्वल कंपैशन टू हिज मेल एंड फीमेल सर्वेंट्स लाइक ही गिव्स टू हिज ओन सन। अपना पुत्र जो है उसके समान वो उसके घर में यदि कोई नौकर है, चाहे वो नौकरानी है या नौकर है, सबको वही वो ट्रीटमेंट देते हैं जो अपने खुद के बच्चों को जो ट्रीटमेंट देते हैं। और लास्ट लाइन में तुकाराम महाराज लिखते हैं, तुकाराम महाराज के अभंग में हमेशा लास्ट लाइन में तुका मणे आता है। जैसे कहत कबीर होता है, या मीराबाई जो होता है, मीरा कहे सुनो गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो ये सब संतों की ये खासियत है कि वो उनका सिग्नेचर एंड में रहता है। और बहुत सारे लोगों ने उस जमाने में भी उनको कॉपी की है अभंग। तो वो अपना अभंग रचेंगे और एंड में तुकामणे लिख देंगे। एक सालो मालो नाम का एक कबीना आदमी था, वो देहू गांव में, और उसको तुकाराम महाराज से बहुत जेलसी होती थी। और वो तुकाराम महाराज के अभंग, वो खुद की रचना भी नहीं करता था, वो चार जगह से सुन लेगा ये तुकाराम महाराज का अभंग है, तो वो अपने उसके चार शिष्य उसने इकट्ठे किए थे, वो सब अभंग वो कॉपी करेगा और नीचे लिख देगा सालो मणे, और सालों अपने नाम पे वो अभंग लेकर रखा। तो तुकाराम महाराज ने गाथा में उसको ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी कुछ चार पांच अभंग लिखे हैं कि लोग कैसे चोरी करते हैं, किसी का अभंग चोरी कर। यू कैन कनेक्ट विद द सेम लिंक, विपर एक मीटिंग खत्म हो गई, सो यू कनेक्ट विद द सेम लिंक अगेन। जिनका जो टाइम टेबल होता है 30 मिनट से 40 मिनट 40 minutes खत्म, बिकॉज आई डिडंट टेक अ पेड वर्जन, आई टेकन अ नॉर्मल वर्जन। तो हेमंत फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ, हाँ, ये था ये बात। so nice, So nice, Vijayaتا is back is back online। online। तो who else? तो सदाशिव सदाशिव आ अभी आ जाएंगे, जाएंगे, सदाशिव के लिए हम सदाशिव के लोग लिए हम रुकेंगे लोग नहीं। रुकेंगे नहीं। We will We will start, start, continue with continue with the work work and and let us। let us। ये यहाँ यहाँ थोड़ा आवाज थोड़ा ऐकू आवाज येतोय। ऐकतोय। आता आता मला इकडे बसलं। ऐकू नये। ओके, Okay. तो द So the लास्ट last is तुका म्हणे तुका दया करणे जे म्हणे त्याची दासा आणि दासा दासी आणि ने दासी देखा। ने देखा। लास्ट लाईन Last आहे, line is तुका म्हणे तुका म्हणे संत किती तोची तोची भगवंताची मूर्ती। सो तुकाराम तुकाराम महाराज, महाराज what more what more need I need say? I say? He is He true is true image of image God. of God. This man This man who who treats treats others, others, whether they are whether they male are male servants or servants or female female servants, servants, people people in in distress, distress, he is always he is there always there to now help to him, help him, and and he treats he them treats as them his as own his own children. children. You can You consider, if you meet a man like that, you you can can consider that consider he is that he the is true the image true of image God। of God। अपने अपने भगवान को ही भगवान को देख ही लिया, देख भगवान लिया, का ही भगवान का दर्शन ही कर लिया है, दिया ऐसा है, ऐसा समझ समझ लीजिए, उसके लीजिए, चरण उसके छू चरण लीजिए छूइए और उसकी और सेवा उसकी करिए, सेवा तो करिए तो भी आपको भगवान भी मिल भगवान मिल जाएंगे। जाएंगे। ऐसा संत सभी संतों सभी को संतों है। को विजय कहते इसको आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज करें। हाँ, क्या है रही? क्या है रे? आवाज येत नाही असं म्हणतंय विद्या। अभी आवाज एको नहीं आ एको रही, येतोय। तो तो कुछ करना कुछ पड़ेगा। करना पड़ेगा। मैं क्या मैं करता क्या हूँ, करता हूँ, मीटिंग बंद मीटिंग करके बंद फिर से करके फिर चालू से करता हूँ। चालू
स्टॉप शेअर. आता येतोय का आवाज? मला येतो. हा येतोय आता येतोय येतोय? आता येतोय. हा. हो आता येतोय. आता मी परत शेअर करतो, बघूया. शेअर केल्यावर आवाज का गेला ते आश्चर्य आहे. इट शुड नॉट हॅव गॉन, बट लेट मी चेक. डिवाइन वर्सेस शेअर. अभी शेयरिंग चालू किया है फिर से. अभी आवाज आ रही है या गई है? आ रही है. अभी आ रही है, तो अभी कनेक्शन बराबर हो गया. सो इट वॉज अ स्मॉल थिंग. आय विल जस्ट रिपीट द लास्ट लाईन विच वॉज सेड. तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ती. Tuka says, what more need I say? He is a true image of God. If you see a person who is treating his servants, even whether that servant is a male or a female, he doesn't differentiate and he gives them treatment like his own son. And he is always holding to his close to his heart people who are in distress. जिस आदमी को दुनिया में कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है, ऐसे आदमी को जो अपनाते हैं, ऐसा यदि आप कहीं भी देख ले तो समझ जाइए कि वही भगवान की मूर्ति है. उसके चरण छू लीजिए, उसको फॉलो करिए, तो आपको भी भगवान मिल जाएंगे. ये सारांश है. इसीलिए पूरा हमारी स्पिरिचुअलिटी में लिखा है कि संतों की सेवा करो. भगवान तो मिलने को हमें तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान का तो इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है. द रियल गॉड इज अनमैनिफेस्ट. गॉड इज बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन. क्योंकि तो विवेकानंद स्वामी ने लिखा है कि जो भी चीज आकार में आएगी तो वो डिस्ट्रक्टिबल होती है. एनीथिंग विच कम्स इनटू द ट्रिनिटी ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. If you come in the three-dimensional world where there is a length and mass and time, then it has a finite life. There is a time it has born, and there is going to be a time it is going to finish. There will be a death. So if the thing is going to die, then that is not God. So according to Vivekananda Swami, he has explained what is Advaita and what is the God beyond manifestation. जो भगवान है, निर्गुण निराकार भगवान है, तो उसकी कल्पना हमें करना तो बहुत मुश्किल है. इसलिए संतों ने हमें कहा है कि भगवान को श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आप भजो, संतों के रूप में भजो, संतों की सेवा करो. संत भी भगवान की ही मूर्ति है. तुकाराम महाराज ने लिखा है कि आपको यदि आप देव की पूजा कर रहे हैं, पत्थर के देव है पूजा, आप पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, और आपके घर में समझो संत चल के आए, तो तुकाराम महाराज ने लिखा है भगवान की पूजा बाजू में रख दीजिए, पहले संतों के चरण धोइए, संतों की सेवा करिए. दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. सो दिस इज हाउ ही हैज डिस्क्राइब्ड दीज पीपल. आणि हा दिस सॉन्ग आई वुड सजेस्ट दैट एवरी पर्सन who has not heard this song should immediately scan the QR code and listen to this song in the voice of the great singer. He is not just Padma Shri, he got Bharat Ratna. He got Padma Shri, Padma Vibhushan, and then he was awarded with Bharat Ratna. भीमसेन जोशी, उनकी आवाज में ये अभंग आप सुन सकते हैं. तो इससे अभी आज का ये सेशन मैं पूरा करता हूँ, और अभी हम 5-10 मिनट थोड़ी बात करेंगे. So please ask questions, whatever you want to ask questions. Hemant, Vipan, Sadashiv and Vijaya Tai, आप बोलिए. अभी सगळे म्यूट काढा आणि यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो. आप लोग आपका वीडियो भी चालू करिए और अनम्यूट करिए. अनम्यूट बटन दबाइए, म्यूट का बटन करके. प्लीज लेट अस हैव सम डिस्कशन. कैसा लगा आज का सेशन? विजया ताई, आपको कैसा लगा? This is the first time, sir. I'm getting exposed to Abhanga, and it's actually great to understand the real meaning of that. म्हणजे ते अभंग तर आपण आजच मी म्हणजे आज एकादशी ना तर हरिपाठ करते, पण ते हरिपाठाचं ऍक्च्युली अर्थ कळायला पाहिजे. तर ते तुम्ही जे काम करताय त्याचं एक एक ओळीचा अर्थ हे करताय, ट्रान्सलेट करून normal people, normal लोकांना समजते in the language which they understand. That is great. Yes, thank you so much. So it is helping in understanding, and there are in this book Yes. you have
52 Abhanga. So once you get the book, you will be able to understand translations of 52 Abhanga. And within a month or two, you will also be able to get the book of 300 Abhanga. I would suggest that Okay. you should do one thing. आप पहले बाजार में से या अमेजोन से तुकाराम महाराज का विवरण सहित गाथा खरीद लीजिए. तुम्हाला Okay. मराठी वाचता येतं हा. सो यू शुड बाय द हा गाथा. म्हणजे ऍक्च्युली म्हणजे देवनागरी तर वाचता येते बिकॉज हिंदी आणि ऑल सगळं. Yes. ऍक्च्युली मराठीत माझं काही शिक्षण असं झालं नाहीये. All right. पण ठीक आहे, मी आता हळूहळू चालू करते. Ah, so केलंय. when you get those 300 Abhanga, 900 Abhanga, you will be able to understand very clearly in English. But in the meantime, I would suggest there are three great people who had written in Marathi विवरण of गाथा. एक खंडारकर महाराज की गाथा है, वो दो खंड में है. एक है जोशी महाराज की गाथा, उसके 3 खंड है. एक है आपने, अच्छा आपने हेमंत आपने भी एक नाम बोला था. फिर जोग महाराज की एक है आणि अजून एकांची आहे, ते पारायणाची त्यांची गाथा आहे. देवड़ीकर महाराज की भी गाथा है. सो 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. आप एक कोई भी गाथा लीजिए तो उसको हर एक अभंग का मीनिंग मराठी में अच्छे अपने आजकल की मराठी में समझाया है. तो वो आप पढ़ना अच्छा. चालू करिए. जब भी मिलेगा समय Okay, sir. मिलेगा, दिन में समझो 2 दिन में एक अभंग पढ़ा, 4 दिन के बाद एक अभंग पढ़ा, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, घर में किताब रहेगी ना तो कभी ना कभी पढ़ना हो जाएगा. पढ़ता ही है. हाँ. You will really enjoy it. So please do that. Yes, sir. And Sure, हेमंत sure. जी, आपको कैसे लगा आज का सेशन? हो, दोन्ही अभंग म्हणजे त्याच्यात काव्य सुद्धा आहे खरंच. कन्या सासुरासीच आहे, मागे परतुनी पाहे, किती Yes. सुंदर. आणि चित्र सुद्धा किती सुंदर त्याचं. आणि ते म्हणजे नुसतं अध्यात्म किंवा नुसतं काही शिकवण असं नाही, तर त्याच्यातनं आनंद घेण्यासारखं सुद्धा सुंदर. जे का रंजले गांजले तर आपल्या एक प्रसिद्ध म्हण आपल्याकडे आहेच की तोची साधू ओळखावा. आणि मुलांना निबंध सुद्धा याच्यावर लिहायला तिला सांगितलं जातं. एक मिनट हेमंत जी, आप आपका मोबाइल बंद कर दीजिए और यहाँ आइए, तो कि इस पर ही बात हो जाएगी. यू कैन गो आउट फ्रॉम द मीटिंग एंड सिट नेक्स्ट टू मी इन द चेयर. विजयाताईचं झालं बोलून. आणि आता सदाशिव, आप बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन? मैंने तो पूरा बुक पढ़ा है, हाँ. 2-3 बार पढ़ा है. हाँ. तो आज का सेशन तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने पढ़ा है वही एक्सप्लेनेशन है. यस. मगर सुनने में और पढ़ने में फर्क आता है. हाँ. यदि हम सुनते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है. अच्छा. ध्यान मतलब वो मेमोरी में रहता है. ओके. और दूसरा जो है तो ये तो बहुत वंडरफुल, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा कि वो जो मराठी है श्लोक वैसे के वैसे हमने उसका हिंदी अपना रोमन लिपि में भी लिखा है, वही हमने ट्रांसलेट करके ये साइड में लिखा है. तो आमने सामने जो है श्लोक वो भी है. और दूसरी बात यह है कि वो बहुत सुंदर तरीके से उसको फिर वापस QR कोड भी दिया है कि हम वो सुंदर आवाज में सुन भी सकते हैं. यदि हम सुनेंगे तो फिर हमको और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा. हाँ, वो तो श्रवण बहुत ही भक्ति, बढ़िया है. श्रवण भक्ति का मजा हाँ. लूट सकते हैं. हाँ. यस, थैंक यू सदाशिव. Yes. ये हमारे विपिन कुमार जी, सदाशिव मेरे जो दोस्त है, हमारी स्कूल में ही पढ़े हैं, संजीवन विद्यालय पांचगढ़ी. और इसकी बुक की जब फर्स्ट एडिशन खत्म हो गई, अभी 10 दिन में पूरी फर्स्ट एडिशन खत्म हो गई, और अभी सेकेंड एडिशन का प्रिंटिंग चल रहा है. तो फर्स्ट एडिशन के बाद सेकेंड एडिशन में जो छोटे छोटे ग्रामर के कोई मिस्टेक्स रहे होंगे, तो वो सब ढूंढने में सदाशिव ने हमको मदद किया बहुत सारा. 2 बार पूरा बुक A to Z पढ़ के सदाशिव ने उसका छोटा छोटा जो पॉइंट्स है वो मेरे को बताया. सो नाउ द सेकेंड एडिशन इज गेटिंग प्रिंटेड. सो सदाशिव, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक. विपिन कुमार जी, थैंक यू दादा. ये हमको बताइए. आप ऐसा करिए, आप इधर आ जाइए. आपका वो बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि उसमें आवाज एको होती है. तो आप मीटिंग से बाहर जाके यहाँ कुर्सी में मेरे बाजू में बैठ जाइए.
तो हेमंत आप भी कुर्सी में आ जाइए। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा रहेगा। आई वांट इट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज इट विल बी मोर कनेक्टिंग विद द पीपल। आप ये कुर्सी लेके इधर आ जाइए। तो अभी आपको हम दिखा देंगे कि हम तीनों एक ही रूम में बैठे थे और हम लोग साथ में बैठ के हम लोग यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से वी आर एंजॉयिंग आवर स्टे इन मिस्टर विपिन कुमार्स house, and we were together for 5 years, 1969 to 1974। अभी उसको 50-60 साल हो गए, लेकिन हमको ऐसे महसूस होता नहीं है कि इतने साल निकल गए, क्योंकि जब भी हम आपस में मिलते हैं तो वी आर लाइक द सेम ओल्ड फ्रेंड्स। हम उम्र भूल जाते हैं और हमारी बातें अच्छी चलती है, मजा आता है। तो विपिन कुमार जी, आपका फीडबैक दीजिए कि ये कार्यक्रम आज का जो है इसके बारे में आपको क्या क्या कहना है। बैठिए ना। ऐसा है कि हमको ये बताइए, कृष्ण भक्ति करते सारे के ये और किसी भी शिव की भक्ति करते हैं? तुकाराम जी वैष्णव संप्रदाय के कि शिव संप्रदाय के? वैष्णव संप्रदाय। तुकाराम महाराज वैष्णव संप्रदाय के हैं, ज्ञानेश्वर महाराज भी वैष्णव संप्रदाय के तो हैं। ये तो उनकी कृष्ण की भक्ति करते हैं ये सब? सब कृष्ण की भक्ति करते हैं। और पंढरपुर में जो विठल की मूर्ति है, हाँ। वो पंढरपुर विठोबा इज एक्चुअली द स्मॉल यंग चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ओके ओके। तो इसकी कहानी ऐसी है। पांडुरंग और विठल एक ही चीज है? पांडुरंग और विठल एक ही चीज है, उसी को विठोबा भी कहते हैं। तो मतलब वही इट्स कृष्णा। लाइक जैसे अयोध्या में रामलला है वैसे है वो कृष्णा ही है। कृष्ण में। और इनका ऐसा स्टोरी है कि कृष्ण भगवान दिंडीर वन में आए। उनका शायद कोई ऐसा सुना है मैंने कि उनका कोई झगड़ा, आइए ना आप पीछे आइए मेरे, तो आपको भी। तो ये नमस्ते सबको। ये है सुमन जी। सुमन जी इज डूइंग, एज आई टोल्ड यू, भगवत गीता MA मास्टर्स in Bhagavad Gita from IGNOU, and it is a 2-year course. You can join by correspondence. They also have some lectures in I'm different a cities. devotee of Lord Krishna. I'm generally, I don't believe in any other god, only in Lord Krishna. Lord So Krishna. that's why I've started. Yes. I had very like keen interest, but never, I was not able to understand Gita while reading it. So I joined this course and I'm finding it useful. And it is a 2-year course, and Yeah. you have the choice to complete it in 4 years. Even if you can't complete in 4 years, you have to take special permission. You have to pay your fees again and continue till you can pass your MA in Gita. It's so nice. I also started feeling कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। course, there was no course in Gita in India. Yeah, This is the first time. first time like the Yeah. course a regular university has started Yeah. with master's degrees This is fantastic. Gita studies. I feel so blessed that I think it's done for me. God wanted that I should understand it. So Yes, yeah. and I Suman feel जी, so blessed. I would like to request you कि 2 साल के बाद ऐसे ही Zoom मीटिंग में आप हमको गीता का हम तो उल्टा सोच करा रहे थे, देना। जब सिएटल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे। हम I was सिएटल thinking that we should be in Seattle. सिएटल Let में people तो listen to you, but सिएटल में हम I'm तो very like don't know Tukaram ji. I have never heard about him, yes, but but we will hear Gita from you. And the good thing is, Sadashiv, we are going to meet in Seattle because when we are going for the cruise, Okay. तो विपिन कुमार के son is in Seattle, so we'll meet so there. they are going to be अच्छा there. So we are going to have a हाँ particular session in Seattle. This is a great thing. I'm feeling very happy that she is doing Bhagavad Gita, कृष्ण का MA in Bhagavad Gita. ये जो पांडुरंग है हाँ। जैसे रामलला है वैसे इनका विठल है। बैठिए ना। चाय नहीं नहीं, बैठ के बोलो ना, बैठो। नहीं नहीं, आप बैठ के बोलो ना। अच्छा, okay. So I think we have done with all the feedback from Suvanji, Rupanji, and Vijayaji and Sadashiv. Dr. Neeti had to go away early because she had some other work. So today we will stop this session here. Thank you very much, and please remain connected. We have the mobile numbers of all of you, and my request is please request everybody to buy at least one copy and give it to somebody who is a foreigner.
somebody who is not an Indian. I would like every non-Indian to get access to this book, and they should read this book so that the teaching of Tukaram Maharaj, which for 375 years it was restricted only to the Marathi field, is now able to go and reach the people of the rest of the world who understand English. And English is an international language. After this, I can imagine that it will get translated from English translations into many other world languages. That is very easy. Not only world languages, I feel we should have translations also in all Indian languages. कम से कम 10 इंडियन लैंग्वेजेस में इसका अगले 5 साल में ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए। इसलिए क्यों क्यों क्योंकि संतों के शब्द में जो शक्ति है, वो शक्ति दुनिया में शांति ला सकती है। हमने देखा है मराठी आदमी ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज की शिक्षा पाने के कारण बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। गुंडागर्दी महाराष्ट्र में इतनी चलती नहीं है। लोग लाठी का राज नहीं चलाते हैं, लोग अपना दिमाग का राज चलता है, कायदे कानून का राज चलता है। महाराष्ट्र में रिक्शा मीटर के साथ चलती है। महाराष्ट्र के बाहर कोई रिक्शा वाला रिक्शा मीटर से नहीं चलाता है। 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, जो मन में आएगा वो कहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में रिक्शा मीटर के हिसाब से चलता है। पीपल आर कल्चर्ड बिकॉज वी हैव द हेरिटेज ऑफ ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, सब संतों की परंपरा हमारे पास है। तो ये जो अमूल्य खजाना है, अमूल्य भंडार है, पूरी दुनिया को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मैं हर एक को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक किताब कम से कम लीजिए और एक फॉरेनर को दीजिए उसको पढ़ने के लिए। With this, I think I will be very thankful. I am very thankful to all of you, very grateful to all of you, and I will stop today's meeting. If you have any questions, you can ask. विजयाताई, तुम्हाला सदाशिव, हेमंत, तुम्हाला अजून काही विचारायचं असलं तर बोला, विचारा, आणि नसेल तर मग आता आपण आपला हा कार्यक्रम थांबवू। मी ऑलरेडी पुस्तकं घेतलेली आहेत, 11 Yes. पुस्तकं माझ्याकडे आहेत वाटण्यासाठी घेतलेले आहे, Yes. आणि मी वाटायला सुरुवात पण केली. ज्यांना इंग्रजी येतं किंवा जे फॉरेनला त्यांचं जाणं येणं असतं त्यांच्याकडे मी एक एक पुस्तक देतो आहे. Very nice. लवकरच माझे पुस्तकं संपतील. ओके, सो नाइस ऑफ यू सदाशिव, थैंक यू सो मच। मैंने अभी लखनऊ में इस्कॉन के टेम्पल में जाके इस्कॉन के उनको एक कॉपी भेंट दी है। और सेतु हनुमान करके एक बड़ा मंदिर है जो नीम करोली बाबा, जिसको स्टीव जॉब्स ने अपनाया था। स्टीव जॉब्स वहाँ आके गए उनके पास, तो नीम करोली बाबा उसके बाद बहुत फेमस हो गए। वहाँ उनको संस्थान को पैसा भी बहुत मिल गया। अभी वहाँ बड़ा केंद्र है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मेडिटेशन सेंटर है। नीम करोली बाबा की संस्थान में भी मैं जाके आया और उनको भी एक किताब मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। I am planning to gift and let people become aware कि this is the way available and you can take benefit of this. Thank you so much for all the help. So, see you. Bye.